Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj. Welcome to the class. We are continue with PGT for KVS and today we are here with Walt Whitman and his poem, The Voice of the Rain. And that seems to be very human poem from him. As a poet, Walt Whitman could cover America like America was in his soul, and this is why Walt Whitman is considered as the voice of America, simply voice of America he was considered. And during his lifetime he could achieve a status to be the great poet of his era. So we are here with the poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. The voice of the rain. This is the poem from Walt Whitman. And before we move to the class and the poem, we have to go through the question session. And here is the first question of the day. What's the name of the crewman hired from Switzerland in the work We Are Not Afraid to Die? What's the name of the crewman hired from Switzerland in the essay We Are Not Afraid to Die? You will have to tell the name of the crewman hired from Switzerland. Yeah, Praveen, it's open. Okay, and we have, good morning everyone, we have here with the replies of Subhash and, okay Subhash, followed by Sachin, Vinita. They have all answered it correct. And the right answer is Herb Seigler. Larry Wiesel was actually from America, and my question was about from Switzerland. So it was simply Herb Seigler as a right answer. Okay, what's the name of the authors of the story We Are Not Afraid to Die? What's the name of the authors of the story We Are Not Afraid to Die? Okay, and we receive answer there on the screen from Sachin is followed by Subhash. They have answered it correct. The right answer is Gordon Cook and Ellen East. Okay, Vinita, but Ellen East is also there. So the two work together for the work that was We Are Not Afraid to Die. Okay. Whose caricature was there on the card of Suzanne in the story We Are Not Afraid to Die? Good morning, Sanjeet. Whose caricature was there on the card in the story We Are Not Afraid to Die? I repeat the question, whose caricature was there on the card of Suzanne in the story We Are Not Afraid to Die? Good morning, Pradeep.
Okay, it's not just the caricature of father Sachin, it's a caricature of parents, means father and mother both. So narrator and his wife Mary, both caricature was there on the card of Suzanne. Good morning, Santosh. Okay, going with the next. Which bird has been mentioned in the poem, The Laburnum Top? Which bird has been mentioned in the poem, The Laburnum Top? Shashikant, actually we have made a group on a Telegram. So simply you should message us on Telegram, and you see Telegram number of ours is 9369542072. 9369542072. This is our Telegram number, and there you message. So message you there with your name and course name. So we will actually add you in that group. So simply you will find the link and all previous classes there for KVS PGT. So it's not actually a separate playlist, that's the font, but simply you'll find it if you message us on Telegram and with your name and your course name. There on Telegram in our group we will add you and you'll find the whole course class. Okay, so the answers are there on the screen from Subhash. Welcome Shashi. And he's followed by Sachin, Vinita. They have answered it correct, and it's a goldfinch. Okay. It's goldfinch, the bird that has been mentioned there. Good morning, Sarita. God bless you. And goldfinch is actually the bird that has been mentioned there in the poem, and that's the laburnum top. How many stanzas have been employed in the poem The Laburnum Top? How many stanzas have been employed in the poem Laburnum Top? Okay, and we receive answers there on the screen. That comes from Subhash, followed by Sachin, Sarita. They have answered it correct. The right answer is 4 stanzas. Exactly, there are 4 stanzas that we find in the poem, The Laburnum Top. Going with the next one. What's the complete name of the poet who wrote the poem Laburnum Top? What's the name of the poet who wrote the poem The Laburnum Top? Complete name of the poet who wrote the poem The Laburnum Top. And we have the answer here from Subhash. It's followed by Sarita, much better from Sachin, Vinita. Okay, so the right answer is Edward James and Ted. That was his nickname, Ted Hughes. So it's Edward James Hughes with the nickname Ted. Okay, Pradeep. Okay, so the right answer is Edward James Ted Hughes. That's the name of the poet who wrote it on The Laburnum Top. Going with the next one. For how many years did the narrator go abroad for higher education? God bless you, Devin. For how many years did the narrator go to abroad for higher education?
And we have the answers. They're on the screen, and we find it from Sachin, followed by Sarita, Vinita, Subhash, Pradeep. They have all answered it correct. The right answer is 5 years, exactly. For 5 years, the narrator goes to abroad. In the in the story, The Portrait of Lady. What's the name of the novelist who wrote the novel, The Portrait of Lady, quite earlier? That becomes the title for Khushwant Singh's story, The Portrait of Lady. What's the name of the novelist who wrote a novel entitled Portrait of Lady quite earlier? That becomes the source for the writing of the story, Portrait of Lady by Khushwant Singh. Okay. We see the answer there on the screen coming. Hello, Amit. Coming from. No, Jayanandan, that's not my question. Actually, my question is very simple. There had been early, what is that, Sarita? Okay, Ritesh. What is that? Remember my question. What's the name of the novelist who wrote a novel with the title The Portrait of Lady quite early that inspired Khushwant Singh to write his story, The Portrait of Lady? That's my question. Okay. And William James is not. Actually, William James is a man who was a psychologist, and he introduced the term stream of consciousness. Well, it's a Henry James that wrote this novel, The Portrait of Lady, and that comes here from Sachin, Vinita, Sarita, Pradeep. They have answered it correct, but confidence, try to show the confidence in your reply. Okay, what's the name of the story that has the character Zahi Hawass? What's the name of the story that has the character Zahi Hawass? Okay, tell the name of the story that has the character Zahi Hawass. Okay, and we have the answer there on the screen. After 1 month, dear, possibly by the end of January, Amit. Okay, and we have the answers on the screen, starting with Sachin, followed by Subhash, Vinita. Okay, Subhash. They have all answered it correct, and the right answer is Discovering Tut, the saga continues. Okay, Sarita. It's not discovering of Tut. It's a discovering Tut, the saga continues. Okay. What was the name of the father of Tut from the story Discovering Tut? What's the name of the father of Tut from the story Discovering Tut? Well, we have the answers, and that comes from Sachin. Okay, Subhash, that can be. That 4 seems to be the correct one. I'm in hot tub. 4th is the right answer. And later on, he named himself Ekhenaten. And there are answers from Sachin,
followed by Sarita, Vinita, and the right answer is Amenhotep IV. And third is doubtful because third is considered to be grandfather or can be father. So both options are there. But for it's Amenhotep IV or Akhenaten, that was his latter name, can be considered as the right answer. So that one is actually the right answer. Going with the next question, and that would be the last as well. When was the Ted Hughes poetry established? When was the Ted Hughes poetry established? It's okay, Sanjeev. When was the Ted Hughes poetry established? Oh, Devin, be careful. My question is, when was Ted Hughes poetry, that was actually an award, established? That my question is. And the right answer is from Subhash. He has answered it correct, that the award that was established as in a respect or in an honor of actually Ted Hughes as a poet was established in 2009. Okay, and it seems you guys are not going through the proper revision of the lessons you have been taught in the class. Must go regularly through the revision. Otherwise, it's not like this story. Some facts are also there that you need to keep in your mind. And you cannot take it easy. If you don't revise them, it's very likely you will forget. So be very careful. Okay. Now I'll move with the poem and the poet. Walt Whitman with his poem that is The Voice of the Rain. Okay. When we come to Walt Whitman, the honor for him is that he's considered as a voice of America. The voice of America. He has been considered. He was born on 31st May 1819. That's his time of birth. And there's the next one of his death that was on 26th March 1892. 26th March 1892. The time of the death. So birth is on 31st May 1819 and death on 26th March 1892. And 1892 is actually related to his lifelong work, and that's the Leaves of Grass. The Leaves of Grass that actually started its publication in 1855 and continues till 1892. So that's the journey of Leaves of Grass, and that's the journey of Walt Whitman as a poet. See, this book had been in 9 editions. And the last edition comes in 1892. Last, or it's called to be deathbed edition. Deathbed edition. That comes in
1892 मीन्स जो 9th एडिशन है वो 1892 में आता है, उसको हम लोग लास्ट एडिशन भी बोलते हैं और उसी को हम डेथ बेड एडिशन भी बोलते हैं। वाल्ट व्हिटमैन की जो जर्नी है वो एक अमेरिकन के रूप में हम लोग इसके लिए भी पहचानते हैं, बिकॉज ही कुड राइट सम पोएम्स रिलेटिंग टू अब्राहम लिंकन, Abraham Lincoln as the President of America, and was the part of the American Civil War. Civil War that took place between 1862 to 1865. There in 1865, Abraham Lincoln was shot dead, and that becomes the source for many poems by Walt Whitman. He was shot dead. Abraham Lincoln was actually 16th president of America, and his death in 1865 inspired Walt Whitman to write many poems relating to death of Abraham Lincoln. You may have heard about "O Captain, My Captain" and "When Lilacs Last in the Dooryard Bloom," and many more poems he could write that were related to the death of Abraham Lincoln. He becomes the source. The next one is American Civil War. That was actually the war between white and black, and Whitman, as a humanist, he was actually a humanist who thought human not in terms of color and caste. Instead, as a human being, he always took them. He could write for them, and as we see कि Whitman की पोएम से वो बात रिफ्लेक्ट होता है। एंड एक बात जो मैरी विटाल स्मिथ ने कहा था, मैरी विटाल स्मिथ, शी इज अ क्रिटिक, मैरी विटाल स्मिथ, इनका एक स्टेटमेंट था और वो आप नोट कर सकते हैं। यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड अमेरिका, यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड अमेरिका without Walt Whitman, without Walt Whitman, comma, without leaves of grass, without leaves of grass. So Mary Whitall Smith कॉस्टेल का मानना ये था कि अगर किसी को अमेरिका को समझना है तो अमेरिका उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ सकता है जिसने विटमैन की लाइफ को नहीं पढ़ा हो, विटमैन की जर्नी को ना पढ़ा हो, और जिसने विटमैन की सबसे बड़ी रचना लीव्स ऑफ ग्रास को नहीं पढ़ा हो। लीव्स ऑफ ग्रास इज नॉट जस्ट अ पोएम, इट्स अ स्टोरी ऑफ अमेरिका, हाउ अमेरिका चेंज्ड इटसेल्फ आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर. It had been a very, very rapid growth for America, and one can feel it actually through the poems of Walt Whitman. He could show
the changes that were taking place in America. And this is why Mary's statement was very, very accurate. We cannot go far from the statement of Ezra Pound. You cannot forget the statement of Ezra Pound, such a great modern critic, Ezra Pound. And the statement from Ezra Pound is, Whitman is America's poet, with apostrophe S, America's poet. After space, dash, 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 he is America. God bless you, Shailen. He is America. So you see simply that how Ezra Pound praised him. Means Ezra Pound के लिए वाल्ट व्हिटमैन क्या है? He is America. मतलब आप अमेरिका को समझिए या फिर व्हिटमैन को समझिए, दोनों एक ही हैं। मतलब दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ रिलेशन है अमेरिका और व्हिटमैन के बीच में, और इसी को एज़रा पाउंड ने अपने स्टेटमेंट में डिस्क्राइब किया हुआ है। द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में अगर बात करें, सो ही कंपोज्ड दिस पोएम इन 1885, and the same year it was published in a periodical named Outing. Outing नाम का periodical होता है, उसमें 1885 में ये पब्लिश भी होता है। बाद में ये पोएम जब 8th एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास आता है, between 1888 and 1889, that is the 8th edition time of the Leaves of Grass, Leaves of Grass 8th edition. तो बाद में ये पोएम included in this as well. इस पोएम में भी इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। The poem seems to be conversational, where the conversation is between the poet and personified rain. रेन को पोएट ने पर्सनिफाइड किया। व्हिटमैन की राइटिंग में आमतौर पे फ्री वर्स देखने को मिलता है। सो द वॉइस ऑफ द रेन इज अगेन अ फ्री वर्स as a poem. It's a free verse and was composed, जैसे मैंने कहा कि एक डायलॉग बेस में इसको कंपोज किया गया था, और पोएट ने इसको स्टेटमेंट के रूप में लिया and seems to be employing personification most of the time in it. पोएम को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि इस पोएम में पोएट एक कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, और उनकी बात होती है रेन से। रेन जो अपने फॉर्मेशन से लेकर के फंक्शन तक की बातें करती है कि क्या उसके फंक्शन होते हैं, कैसे वो काम करती है, और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका निर्माण होता है। इसके बारे में पोएम ने स्पेशली इसमें बताया है। अगर हम बाकी लिटरेरी डिवाइसेस को देखें तो कहीं कहीं पर एपोस्ट्रॉफी, इंजैममेंट,
और सिजूरा का यूज करते हुए भी पोएट मिलते हैं, जो बहुत कॉमन है विटमैन के लिए इस तरह के यूज को करना। हालांकि पोएम इज नॉट अ सोनेट, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पोएट का जो स्टाइल है राइटिंग को, वो आई थिंक सिजूरा, यू नो, सिजूरा इज एक्चुअली a slight pause in the middle of line। एक तरह से जब हम लाइन को लिख रहे होते हैं या लाइन को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो लाइन के बीच में जो हम स्लाइट पॉज लेते हैं, थोड़े वक्त के लिए जो रुकते हैं, उसे ही हम लोग सिजूरा कहते हैं। तो सिजूरा का यूज यहां पर पोएट ने किया है। इसके अलावा लिटरेरी डिवाइस के रूप में पोएट ने एनजैममेंट का भी यूज किया है। एनजैममेंट का यूज किया। एनजैममेंट का मतलब होता है कि continuity of the line or continuity of the sense in the next line, means इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन से रिलेट करते हैं। बात को समझिए, एंजॉयमेंट क्या होता है कि जब किसी बात को हम एक लाइन में कह रहे होते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि वो बात उस लाइन में कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हम अगली लाइन में भी उस बात को कहते हैं। मतलब हमारे थॉट को रन करता हुआ हम देखते हैं। सिंपली एक पोएम को लिखते समय पोएट किस बात का ख्याल रखता है कि जो बात वो एक लाइन में कह रहा है वो बात उस लाइन में कंप्लीट हो जाए। लेकिन समटाइम्स इट डज नॉट अकर एक्चुअली, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में पोएट क्या करता है कि जो बात एक लाइन में कह रहा है उसको तो कहता ही है, वही बात वो दूसरी लाइन में भी कहता चला जाता है। और होता यह है कि बीच में कहीं उसको रुकना पड़ जाता है। सिजूरा दैट्स कहीं ना कहीं बीच में कॉमा लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली, आई थिंक प्रदीप इज देयर। ओके प्रदीप, एग्जैक्टली, रन ऑन लाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में उसको रुकना पड़ जाता है, कहीं कॉमा लगाता है, कहीं फुल स्टॉप लगा देता है, कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देता है। लाइन के बीच में ये जो पॉजेज होती हैं, जो रुकना होता है, दैट्स कॉल्ड सिजूरा। और एक लाइन का दूसरी लाइन में एंट्री करना इज कॉल्ड एक तरह से एंजॉयमेंट। जैसा प्रदीप ने कहा कि रन ऑन लाइन, मतलब यह है कि लाइन ऑन है, लाइन खत्म नहीं हो रही है, लाइन आगे बढ़ती चली जा रही है। तो जो बात, जो थॉट एक लाइन में कंप्लीट होनी चाहिए थी, वो रन ऑन कर रहा है, अगली लाइन में भी जा रहा है। इसलिए वहां पर क्या यूज किया जा रहा है? एंजॉयमेंट का। और विटमैन ने एंजॉयमेंट का भी यूज किया हुआ है। एपोस्ट्रोफी एज अ फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने यूज किया, पर्सनिफिकेशन का यूज किया है। एपोस्ट्रोफी आप जानते ही हैं, एड्रेसन के लिए यूज किया जाता है। किसी को एड्रेस करना, किसी को संबोधित करना, किसी को संबोधित करके अपनी बात को कहना। तो जैसे हमने शुरू में ही कहा आपसे कि कन्वर्सेशनल पोयम है। पोयम में पोएट भी है और ये पोएट की क्वेरी होती है, पोएट के खुद सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो ये पूछते हैं, किससे पूछते हैं? रेन से पूछते हैं, जिसको रेन रिप्लाई बैक करता है, रेन वापस उनको रिप्लाई करता है। तो रेन तो नॉन लिविंग है, लेकिन रिप्लाई कैसे कर रहा है? जैसे ह्यूमन बीइंग। इसलिए रेन के सेंस में ये पर्सनिफाइड भी है। और चूंकि पोएट एड्रेस करता है, अपनी बात को पूछने के लिए रेन को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, रेन से कह रहा है ना, पूछ रहा है, इसलिए रेन में ही एपोस्ट्रोफी का भी यूज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रेन उसे संबोधित करके बातों को कह रही है। बाकी लिटरेरी डिवाइस के रूप में आपको मैंने बताया कि एक तरह की फ्री वर्ड्स है, जिसके लिए वाल्ट विटमैन जाने जाते हैं। और अगर रही बात फ्री वर्ड्स की, इज कंसीडर टू बी द मॉडर्न फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। वैसे तो फ्री वर्ड्स को शुरू करने का क्रेडिट अलग अलग राइटर्स को जाता है, जिसमें हम किंग जेम्स फर्स्ट को भी लेते हैं, किंग जेम्स फर्स्ट को भी क्रेडिट देते हैं। बट जो मॉडर्न टाइम में
फ्री वर्स की पॉपुलैरिटी रही है, फ्री वर्स का जो ग्रोथ रहा है, उसे अगर कोई आगे लेकर आया है तो वो वाल्ट व्हिटमैन है। और इसी वजह से इनको कहा जाता है कि मॉडर्न फादर ऑफ फ्री वर्स है, जिन्होंने फ्री वर्स को इस काबिल बनाया कि कोई भी लिटरेरी पर्सन इस बात से वाकिफ हो सके कि फ्री वर्स में इतनी कैपेसिटी है कि वह अपनी लाइनिंग को, अपने थॉट को कन्वे कर सकता है। पोयम में कहीं ना कहीं बीच बीच में इंटरनल राइम भी देखने को हमको मिलेगा, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल राइम भी हमें देखने को मिल सकता है। अब इंटरनल राइम क्या होता है उसको समझ लीजिए। इंटरनल राइम, एक्चुअली इंटरनल राइम का मतलब होता है जब एक ही लाइन के दो हिस्से आपस में राइम कर जाएं। मतलब जैसे एक लाइन होता है, उसके दो पार्ट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कॉमा के पहले वाला, कॉमा सेंटेंस के लास्ट में। जैसे अगर एक लाइन लिख रहे हैं, यहां तक मान लीजिए लिखे, एक साउंड यहां पर आ रहा है और वो लाइन कंटिन्यू है, यहां खत्म हो रही है। तो जो साउंड यहां खत्म हो गया वही साउंड अगर यहां आ रहा है और दोनों साउंड अगर मैच हो गए, इसका मतलब ये लाइन के अंदर है ना, ये जो बीच वाला आ रहा है लाइन के अंदर है और ये लाइन के लास्ट में। तो जब अंदर का वर्ड लास्ट के वर्ड से मैच कर रहा है तो इंटरनल का मतलब क्या होता है? आंतरिक। तो आंतरिक का मतलब क्या हो गया पोएट्री में? एक लाइन के बीच का हिस्सा जो साउंड है मैच कर जाए लाइन के लास्ट वाले से, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल राइम। तो कहीं कहीं पर इस पोएम में आपको इंटरनल राइम भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि व्हिटमैन पोएट्री को पोएट्री के रूप में देखते थे और उनके लिए, गुड मॉर्निंग आयुष, उनके लिए ये पोएट्री कोई आर्ट नहीं थी। पोएट्री व्हिटमैन के लिए एक जॉय थी, एक खुशी थी, जिसके माध्यम से उनके मन में जो आता था, जो थॉट आते थे, जो विचार आते थे, जो ख्याल आते थे, उन थॉट को, उन ख्यालों को वो प्रेजेंट किया करते थे, उनको एक्सप्रेस किया करते थे। मतलब दो तरह के लोग होते हैं, एक अपनी पोएट्री को, अपनी राइटिंग को सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, मतलब ढेर सारी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करेंगे जिससे थॉट तो अपीलिंग हो ही, उसका जो फॉर्म होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह भी अपीलिंग होनी चाहिए, वह भी बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए। ऐसा कई पोएट करते हैं। खासतौर से हमारे इंग्लैंड में जो नियो क्लासिकल पोएट्स थे, चाहे वो अलेक्जेंडर पोप हों, जॉन ड्राइडेन हों, या बाद में चल करके ओलिवर गोल्ड स्मिथ हों, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हों, इन सब लोगों ने बड़ी खूबसूरती से और बड़े केयरफुली इस बात का ध्यान रखा था कि आर्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और थीम पर कहीं ना कहीं वीक हुए थे। बट लेटर ऑन ब्रिटेन में ही, इंग्लैंड में ही जब रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है, जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे पोएट आते हैं, दे स्टार्ट टेलिंग अस दैट पोएट्री is not all about art and craftsmanship. Exactly, it's just a feeling of a poet, an emotion of a poet that he feels to be correct to be shared with other people around him, and that's what he does actually, without caring कि इसका आर्ट क्या है, इसका फॉर्म क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीजें हमें वाल्ट व्हिटमैन में भी देखने को मिलती हैं कि पोएट्री एक तरह का कम्युनिकेशन है बिटवीन द पोएट एंड द रीडर। पोएट जो बातें कहता है उससे पोएट के पढ़ने वाले, उसको पोएट को सुनने वाले सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसा लगता है पोएट कोई बात है जो अपने रीडर से कन्वे करना चाहता है। फिलहाल यहां पर वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो है वॉइस ऑफ द रेन के साथ। बारिश की जो संगीत होती है उसे हमने सुना तो हजारों बार होगा, लेकिन महसूस शायद कभी ना किया होगा। सुना हजारों बार होगा, बारिश होती है, छत पे पानी गिर रहा है, पानी क्यों गिर रहा है, पानी गिरते हुए क्या कह रहा है, वी हैव नेवर थॉट एक्चुअली। फॉर अस इट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस
नेचर ने बारिश कर दिया, इट्स ओके। बट पोएट के लिए यही चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। एक कवि के लिए ये बातें डिफरेंट होती, ही नेवर थिंक्स इट टू बी जस्ट ओके। फॉर हिम इट्स नॉट जस्ट ओके, इट्स लाइक द लाइफ गिविंग रेन आर कमिंग ऑन द अर्थ। So the communication can take place between the poet and the rain. And what a similarity is there. बारिश जब जमीन पर आती है तो वो ये सोच के आती है कि खूबसूरती का निर्माण करेगी, अपने बाद एक खूबसूरत दुनिया तैयार करेगी। इस दुनिया में जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, उसको मेंटेन रखेगी। कोई उसको ड्यूटी समझाता नहीं कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुमको ये करना है। सेल्फ असाइंड ड्यूटी होती है, खुद उसने एक्सेप्ट किया है, खुद स्वीकार किया है। एक पोएट भी उसी तरह से होता है। एक पोएट की भी ड्यूटी अपने समाज को सुधारने की होती है। एक पोएट के अंदर आने वाले ख्याल भी बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जो क्लाइमेटिक गंदगी को साफ करने के लिए आता है। उसी तरह से पोएट के अंदर उठने वाले जो ख्याल होते हैं वो हम इंसानों की जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में जो गंदगी है उसे साफ करने के लिए आता है। तो दोनों अपना काम करते हैं बिना ये सोचे हुए कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है। और विटमैन के लिए मैं आपसे क्या कहूं, विटमैन के ऊपर तो सोडोमी का आरोप लग गया था, होमोसेक्सुअलिटी का आरोप लग गया था। In those days, homosexuality or sodomy was not such an easy thing. But you see, a poet is always engaged in his thought and does not care what the world says, because one day the world will understand his thought and then world will salute him. That's what we are doing here actually. जिस पोएट को कभी हमने गलत समझ लिया था, हमारे समाज के लोग थे, गलत समझे थे, आज उसी पोएट को हम पढ़ रहे हैं। हमारी हर क्लासेस में उस पोएट की कविताएं आ रही हैं, उनके थॉट्स आ रहे हैं, उनके ख्यालात आ रहे हैं। इट मीन्स किसी पोएट को समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है, थोड़ा वक्त का काम होता है। वक्त के गुजरने के साथ हम उसको समझना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आइए इस पोएम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पोएट ने क्या बातें कहने की कोशिश की है रेन के माध्यम से हम सारे लोगों से। चलिए। एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर। सॉफ्ट फॉलिंग शोर, प्यारी प्यारी रिमझिम बारिश हो रही है। तो रिमझिम ये बारिश से बात करते हुए पोएट पूछता है, हु आर दाउ, आखिर आप हो कौन और हमारे छत पे क्यों गिर रही हो? आप कौन हो, हमारी छत पे क्यों गिर रही हो? Which is strange to tell, give me an answer, as here translated. ये बात अजीब है, शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको स्ट्रेंज लगेगा। मैंने अभी कहा ना कि जो बात कवि महसूस कर लेता है, जिस बात को कवि एहसास कर लेता है, उस बात को एक कॉमन ह्यूमन बीइंग को एहसास करने में सदियों लग जाते हैं। जिस बात को उन्होंने 19th सेंचुरी में महसूस कर लिया था, आज हम 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा विच स्ट्रेंज टू टेल, बड़ा अजीब है कि हम आपको समझाने की कोशिश करें, बड़ा स्ट्रेंज सी बात है कि हम आपको समझाने की कोशिश करें। गिव मी एन आंसर। आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने पूछा, मेरे छत पर गिरते हुए, मेरे आसपास गिरती हुई खूबसूरत नाजुक बारिश की बूंदों से जब मैंने पूछा कि आप हैं कौन, तो आपको यकीन नहीं होगा, बारिश की बूंदों ने हमें रिप्लाई किया, बारिश की बूंदों ने हमें जवाब दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड। और उन्होंने क्या जवाब दिया है? जवाब रेन का है, शब्द मेरे हैं, ट्रांसलेटेड। जो बात रेन ने मुझसे कही थी, मैंने उसे अपने शब्दों में ट्रांसलेट करके यहां पर बताया आपको। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस अर्थ की, इस जमीन की कविता हूं। मैं इस जमीन की कविता हूं, पोएम ऑफ द अर्थ।
समझने की कोशिश करिए। अर्थ इज अ पोएट एंड रेन इज अ पोयम। बात समझिए आप? जैसे जमीन पर एक कवि पोयम को लिखता है, वैसे ही बारिश की बूंदों को लिखने का काम ये जमीन करती है। जैसे पोएट की पोयम पोएट को खूबसूरत बना देती है, उसी तरह से बारिश की बूंदें जो इस जमीन की कविता होती हैं, इस जमीन को खूबसूरत बना देती है। बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं तो जमीन में खूबसूरती आती है कि नहीं? पेड़ पौधे फूल पत्तियां सारी कुछ हरे भरे हो जाते हैं, सारी गंदगी धुल जाती है, आसमान एकदम साफ हो जाता है। तो वैसे ही काम ये बारिश की बूंदें कर रही हैं, जैसे जमीन पर बैठा हुआ कवि अपनी कविता के माध्यम से किया करता है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश ने कहा, आप जमीन पर बैठे हुए कवि हैं और मैं इस जमीन की कविता हूं। आप जमीन पर बैठे हुए कवि हैं, मैं इस जमीन की कविता हूं। इटर्नल आई राइज इनपेपेबल आउट ऑफ द लैंड। मैं इटर्नल राइज करती हूं, मुझे इस जमीन से निकलता हुआ कोई नहीं देख पाता है। इटर्नल राइज करती हूं ना, इस जमीन के अंदर से मैं उठती हूं। कभी हम लोगों को दिखता है वाष्प जा रहा है या बारिश की बूंदें? हमने तो सिर्फ पढ़ा है ना, हमने सिर्फ पढ़ा है कि हाँ ये पानी जो होता है वो ओस वाष्प बनता है, ऊपर जाकर के बारिश की बूंदें बनती है, फिर बारिश वो ठंडक होने की वजह से नीचे जमीन पर कभी दिखती नहीं है। हमारे आसपास से भी बारिश की बूंदें जा रही होंगी। इटर्नल आई राइज, बिना किसी को दिखे, इनपल्पेबल, अदृश्य रूप से, अभौतिक रूप से। मेरा रूप पल्पेबल नहीं है, मेरा रूप फिजिकल नहीं है। जब मैं जमीन से उठती हूं तो कोई मुझे देख नहीं सकता। आउट ऑफ द लैंड, मैं जमीन से उठती हूं लेकिन मुझे कोई देख नहीं पाता है। एंड द बॉटमलेस सी, और मैं अथाह दिखने वाले इस सागर से उठती हूं। मेरी दो दुनिया है जमीन से उठने की, मेरी दुनिया है जमीन से उठने की, मेरी दुनिया है सागर से उठने की। तो मैं जमीन और सागर की दुनिया से आई हूं। इनपल्पेबल, कोई मुझे देख नहीं पाता है, कोई मुझे महसूस नहीं कर पाता कि मैं उसके पास। बिल्कुल वैसे ही जैसे पोएट हमारे और आपके बीच होता। हमने आपसे कहा ना, जाने कितनी बार हमने देखा होगा बारिश को होते हुए, जाने कितनी बार देखा। कभी इसको महसूस किया कि बारिश होती क्यों है, सिवाय इसके कि साइंटिफिक रीजन हम ले रहे हैं? कभी नहीं महसूस किया होगा। पोएट ने महसूस किया ना, वो थॉट जो पोएट के मन में आया वो भी तो ऐसे ही उठा होगा। हम सारे लोगों के मन में नहीं आया, लेकिन पोएट के मन में आया। हम सारे लोगों के लिए अदृश्य था। बिल्कुल उसी तरह से ये बारिश की बूंदें इस जमीन से उठती हैं, इस सागर से उठती हैं, लेकिन हम लोगों को दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि पैल्पेबल फॉर्म में नहीं होती हैं, दृश्य रूप में नहीं होती, अदृश्य रूप में नजर आती हैं। अपवर्ड टू हेवन, इस जमीन को छोड़ती हुई, इस सागर को छोड़ती हुई मैं हेवन की ओर जाती हूं, आसमां की ओर जाती हूं। क्योंकि ये हेवन की ओर जाने का मतलब क्या हुआ? जमीन से उठे हुए विषय को कवि आसमां की ऊंचाई तक ले जाता है, उसके बारे में सोचता है कि क्या इसका पीक हो सकता है, उसको महसूस करता है कि ये कितना ऊपर जा सकता है ये ख्याल, और फिर उस ख्याल को पिरोकर हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। जैसे यहां से उठने वाली जो बूंदें होती है, वाष्प होता ऊपर जाता है, और जब ऊपर चला गया जहां उसको प्योरिटी मिल गया, एक फॉर्म लेता है, और फॉर्म लेने के बाद फिर से जमीन पर वापस आ जाता है। सेम वे पोएट का ख्याल है। अपवर्ड टू हेवन वेंस वैगुअली फॉर्म्ड, मैं यहां से उठती हूं और उठ करके आसमां में जाती हूं। तो यही की, अलग की नहीं हूं ना, यहीं की हूं, यहीं से उठ के जा रही हूं, लेकिन फॉर्म में कहां होती, मेरा रूप कहां मिलता है? ऊपर आसमां में। ये कवि का दिमाग है जहां पर एक कविता को फॉर्म मिलता है। तो मैं ऊपर जाती हूं, वैगुअली फॉर्म्ड, मैं बड़ी
स्वाभाविक रूप से वहां पर फॉर्म्ड हो जाती हूं, ऑल टुगेदर चेंज्ड येट द सेम, मैं पूरी तरह से चेंज्ड हो जाती हूं, पूरी तरह से मैं बदल जाती हूं, फिर भी मैं सेम रहती हूं, फिर भी मैं वही रहती हूं। मतलब मैं पहले भी पानी थी और बूंद बनने के बाद भी पानी हूं, मैं पहले भी शीतल थी, बूंद बनने के बाद भी शीतल हूं। मेरी शीतलता नहीं खत्म हो जाती है, मेरा फॉर्म बदल जाता है, मेरा रूप बदल जाता है, फिर भी मैं सेम रहती हूं। क्योंकि जब मैं यहां से निकली थी तो अदृश्य रूप में थी, किसी ने मुझे देखा नहीं, मैं उसके बगल से ही निकल रही थी। लेकिन जब ऊपर गई, आसमां में गई, तो वैग्वली फॉर्म्ड, मैं वहां स्वाभाविक रूप से मैंने अपना एक फॉर्म किया, अपने आप का रूप बनाया। और वो जब मैंने रूप बनाया तो मैं लोगों को दिखने लगी, लोगों को दिखने लगी, लेकिन मेरे अंदर की जो क्वालिटी है सेम, पहले भी वही थी, अभी भी वही है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड, फिर मैं डिसाइड करती हूं कि मुझे डिसेंड करना है, मुझे नीचे उतरना है। टू लेव दी ड्रॉट्स, ताकि मैं यहां की, थैंक यू धनवीर, गुड मॉर्निंग काव्या, ताकि मैं यहां जमीन की जो सूखापन है, ड्रॉट्स को खत्म कर सकूं। मैं यहां जो एटॉमीज हैं, छोटे छोटे जो कण हैं, उन कणों को साफ कर सकूं, जो हमारे ग्लोब में, हमारे चारों तरफ के वातावरण में डस्ट लेयर है, उस डस्ट लेयर को हम साफ कर सकें। ये बारिश की बूंदें आती ही इसलिए हैं, ये बारिश की बूंदें आती ही इसलिए हैं ताकि हमारी दुनिया के सूखापन को दूर कर सकें, हमारी दुनिया में जो ये धूल कंकड़ उड़ रहे हैं उन्हें साफ कर सकें, और हमारी दुनिया के ऊपर जो धीरे धीरे करके प्रदूषण का एक लेयर बनता जा रहा है, बारिश की बूंदें उन्हें भी धुल देती हैं, जिसकी वजह से वो लेयर खत्म हो जाता है। तो बारिश की बूंदें समय समय पर अपना फॉर्म करके, अपना रूप बना करके जमीन को साफ सुथरा रखने का काम कर रही हैं। एंड ऑल इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न, एंड ऑल दैट इन देम, और इतना ही नहीं, इस वातावरण में कहीं न कहीं तो सीड्स भी होते हैं, अनाज के दाने भी होते हैं, और अगर मेरी बारिश ना हो तो ये अनाज के दाने अनबॉर्न ही रह जाएंगे, कभी ये अनाज के दाने पौधे नहीं बन पाएंगे। तो जो ये अनाज के दाने हैं, उन अनाज के दानों को जीवन देने का काम भी मेरा ही है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, क्योंकि मैं जानती हूं, एक बारिश के रूप में मैं जानती हूं, अगर मैं ना आऊं तो इस वातावरण में सिर्फ अनाज होंगे, अनाज के अलावा पौधे नहीं होंगे। और कितने दिन तक ये अनाज रुक पाएंगे अगर मैं जमीन पर ना आई, अगर मैंने बारिश ना किया तो? आप समझ रहे ना? मतलब ये केवल धूल मिट्टी नहीं उड़ते रहते हैं आसमां में, कभी कभी अनाज के दाने भी उड़ रहे होते हैं। हर जगह पर हम इंसान तो पौधारोपण करने जाते नहीं, हम लोग तो वो पर्यावरण दिवस पर ही पौधारोपण करते हैं, है ना। एक पौधे के साथ 10 लोग फोटो खिंचाते हैं। जिसने गड्ढे को खोदा, जो पौधा लाया है, जो पानी भर के रखा है, उसका पता ही नहीं होता है। जो लोग सो कॉल्ड इको फ्रेंडली पीपल हैं, वो अपना फोटोज लेकर के इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा ऐसा सोशल मीडिया पर अपने आप को हाईलाइटेड कर लेते हैं। ये बात तो अपनी जगह है, क्योंकि ये हम लोग करते हैं तो हम तो दिखावा करते हैं। कभी नेचर से पूछा, नेचर ने इतने पेड़ पौधे लगाए हैं, कभी हमसे पूछी ही नहीं कि एक फोटो लोगे क्या, सेल्फी मेरे साथ? कभी नहीं, है ना। बारिश कहती है जाने कितनी अनाज के दाने हैं इस पूरे वायुमंडल में उड़ते हुए, अगर मैं ना आऊं तो ये सिर्फ अनाज के दाने रह जाएंगे, कभी ये पौधे का शक्ल नहीं ले पाएंगे। लेटेंट एंड अनबॉर्न, ये पड़े रहेंगे और कभी भी बॉर्न नहीं हो पाएंगे, कभी भी इनसे अगले पौधे का पैदावार हो ही नहीं पाएगा। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। रिमेंबर व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट, और हमेशा हर वक्त,
चाहे वो दिन का वक्त हो, चाहे वो रात का वक्त हो। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने खुद की ओरिजिन को लाइफ देती रहती हूं, मैं खुद की ओरिजिन को जीवन देती रहती हूं। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये बारिश की बूंदें जब जमीन पर आती हैं तो आपको मालूम है ना, बारिश यहां जब रुकती है तो फिर यहीं से तो फिर बारिश का निर्माण होता है ना। अगर बारिश की बूंदें जमीन पर ना आए, क्या बारिश का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो बारिश होकर एक ओर तो पौधों को जीवन दे रही, दूसरी ओर पूरे वातावरण को साफ कर रही है, तीसरा खुद को भी जीवन दे रही है। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई अगर काम मैं कर रहा हूं तो सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी काम आप करते हैं तो कभी भी किसी दूसरे के लिए करते ही नहीं है। मेरा खुद का मानना है, anything you do in your life, you never do it for other, always you do it for yourself. So whatever you do, whether it's right or wrong, consider you're doing it for yourself. अच्छा करोगे, बुरा करोगे, जो करोगे वो सिर्फ अपने लिए करोगे। किसी दूसरे के लिए हम अपने पूरे जीवन में कोई कार्य करते ही नहीं है। भले ही हम नाम दे देते हैं कि हमने पापा के लिए किया, हमने भैया के लिए किया, हमने बहन के लिए किया, एक्सेट्रा, लेकिन हमेशा हम अपने लिए करते हैं। और अच्छा करते हैं वो भी हमें रिटर्न होता है, बुरा करते हैं वो भी हमें रिटर्न होता है। बारिश कह रही है कि मैं ये सब चीजें जो बता रही हूं ना, उन सब चीजों के साथ मेरा खुद का ओरिजिन जुड़ा हुआ है। मैं अपने ओरिजिन के लिए बारिश करती हूं, क्योंकि अगर आज मैंने बारिश नहीं की ना तो अगला मेरा ओरिजिन ही नहीं रह जाएगा, मेरा जीवन ही नहीं रह जाएगा। आज अगर मैंने बारिश नहीं की तो अगली बारिश नहीं आएगी, मैं खत्म। इसलिए मैं पौधों को, वायुमंडल को, सबको साफ सुथरा और जीवन तो देती ही हूं, साथ ही साथ लाइफ बैक, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं खुद के ओरिजिन को भी लाइफ देती हूं, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और हर वक्त हर पल मेरी कोशिश होती है कि इस पूरी जमीन को, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को खूबसूरत बनाती रहूं और इसको मैं शुद्ध रख सकूं, प्योर रख सकूं। आपको तो मालूम है ना कि ये पानी जो होता है कितना शुद्ध होता है, तो प्योरिटी भी है। मेरे अंदर बनावटीपन नहीं है। एक कवि के अंदर बनावटीपन नहीं होता है, उसको किसी से ना दुश्मनी, किसी से ना दोस्ती। वो कबीरदास जी ने कहा ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। एक कवि का ख्याल किसी से दोस्ती और किसी से बैर का नहीं होता। एक पोएट है, उसका ख्याल हमेशा इंसानियत के लिए होता है, ह्यूमैनिटी के लिए होता है। और पोएट अच्छा लगे किसी को या बुरा लगे, बात खरी कहता है। रेन कहती है मैं अपने आप को प्योर रखती हूं, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इस पूरी दुनिया को मुझे प्योर करना है। और जब मैं प्योर रहूंगी, समझने की कोशिश करिएगा, जब मैं प्योर रहूंगी तभी मैं दुनिया को ब्यूटीफाई कर पाऊंगी, तभी मैं दुनिया को खूबसूरत बना पाऊंगी। इसलिए कवि खुद को प्योर रखता है, और जब वो प्योर रहता है तो वो दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए अच्छी अच्छी रचनाएं और अच्छी अच्छी बातें कहता है। तो बारिश प्योर करती है पूरी दुनिया को और ब्यूटीफाई करती है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जहां तक इस गीत की बात, जो इसके बर्थ प्लेस से शुरू होता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, जब इसका पूर्णता आ जाता है, फुलफिलमेंट आ जाता है, वॉन्डरिंग, भटकते हुए, रेक्ड और अनरेक्ड, डूली विद लव रिटर्न्स, चाहे हम जानते हो चाहे हम ना जानते हो, डूली इट रिटर्न्स, ये वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। कोई भी गीत, कोई भी संगीत, जब कभी एक गीत संगीत को बनाता है, जैसे मैंने आपसे बताया ना कि कई बार हम नहीं चाहते हैं, फिर भी इट रिटर्न्स, डूली विद लव रिटर्न्स। इसमें हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि ये लव कैसे हमारे पास वापस आ गया, अपने आप आ जाता है। जो हमने किया, वो पुरानी कहावत है ना कि जो हमने किया है वही तुमको मिलने वाला है, कुछ अलग तो मिलेगा नहीं। तो इस रेन के माध्यम से पोएट वाल्ट व्हिटमैन ने हमें समझाने की कोशिश की है कि जैसे रेन बिना किसी एक्सपेक्टेशन की
कि वो अगर अच्छा काम कर रही है तो दूसरे दुनिया वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसका एक्सपेक्टेशन उसको कुछ नहीं है। उसको एक बात का एक्सपेक्टेशन है कि मैं अगर काम कर रही हूं तो मुझे उस काम को प्योरिटी के साथ करना होगा, और अगर मैंने प्योरिटी से किया तो मैं ही ब्यूटीफाई भी करूंगी, इसको खूबसूरत भी बनाऊंगी। इसी तरह से हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर वह किसी काम को खूबसूरती से कर रहा है, अच्छाई से कर रहा है, तो नो डाउट वह इस दुनिया को प्योरिटी भी दे पाएगा, खूबसूरती भी दे पाएगा। अपने आप को गलत रखो और दुनिया को सही करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। खुद को भी सही करो, दुनिया भी सही हो जाएगी आपको देख करके। सॉन्ग अच्छा हो या बुरा हो, उसका लव जो होता है उसको रिटर्न मिलता ही है। जैसे जीवन जहां से शुरू होता है वहीं पर आकर जीवन खत्म होता है, बारिश जहां से शुरू होती है वहीं बारिश आकर खत्म होती है, कवि का ख्याल भी जहां से शुरू होता है वहीं आकर के खत्म हो जाता है। हमारी क्लास भी जहां से शुरू हुई थी वहीं आके खत्म। तो आज के लिए इतना ही। विल सी यू डे आफ्टर टुमारो इन द क्लास। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अगेन। हैव ग्रेट टाइम, ग्रेट जॉय एंड ग्रेट हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।